Hello, friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. And today we are going to start our next chapter, that is Preamble. So, we are starting the description of our book called Constitution, and the very first page, when you open the cover of our Constitution, is the Preamble. So in the previous classes we have came from the historical background, then the most important things I am underlining, the historical background, then the sources of constitution, why Indian constitution is called federal, why Indian constitution is called unitary in nature, the salient features of our Indian constitution. Then we have seen some of the criticism of our constituent assembly, and now we have taken our course to preamble. So without any further ado, let's start today's topic. Now there are various one-liners that can be given in our prelims exam, and that too regarding preamble. So these are, एक एक करते आप अपना notes बनाते रहिए, लिखते रहिए, मैं बताता रहता हूँ. The first thing is preamble has been enacted, as I have told you in my previous classes. Preamble has been enacted after whole of the constitution has been enacted. Understood? So this is the first thing. Second thing, preamble has been amended once so far, that is by 42nd Amendment Act of 1976, and 3 words have been added. The acronym is S2I, 2 बार S, 1 बार I, socialist, secular and integrity. These 3 words were added in the preamble by 42nd Amendment Act of 1976. In the previous class I have told you a famous judgment where one of the largest constitutional bench has been formed by the Supreme Court, that is Keshwanand Bharati case in 1973, and the outcome of this Keshwanand Bharati case is more phenomenal than this particular fact also. That is the basic structure doctrine. So in this basic structure doctrine, I have told you all this in previous classes. In this basic structure doctrine, the Supreme Court held that Parliament has the power to amend almost all of the provisions of the constitutions, but Parliament can't amend the basic features, some of the basic features of our Indian constitution. It means if our constitution is giving us command that please form a parliamentary form of government, so by particular this basic structure doctrine, we can't shift it to presidential form or any other form like autocratic form or काइंड ऑफ जो रिलीजियस रिपब्लिक्स होते हैं लाइक पाकिस्तान, ऐसे भी हम कोई फॉर्म नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? So I have told you by 42nd Amendment Act preamble has been amended. It means preamble is not a part of basic structure doctrine. This is the first conclusion. The second conclusion is Supreme Court itself held that yes, preamble is not part of the basic structure doctrine, but the principles that are underlying the preamble are part of the basic structure doctrine. So या तो आप इस लाइन को थोड़ा सा अब्जॉर्ब करिए, कंटेम्पलेट कीजिए, तब आपको समझ आएगी, और या तो इस लाइन को आप रट लीजिए. There are two things ahead of you. So what I have told you, that preamble itself is not part of basic structure doctrine, but the principles underlying the preamble are part of basic structure doctrine. Understood? Preamble is kind of a summary of the constitution. Is kind of a not a plan. Yes, this is very important thing. Preamble is not a plan of the constitution. ऐसा नहीं है कि first we have drafted our preamble, then taking this blueprint in our minds we have drafted our constitution. So this is not it. Okay, first the whole constitution has been drafted, then by taking inferences from the constitution our preamble has been drafted. This
goes on to the next point. The predecessor of preamble was the objective resolution that was passed on the first session or the third meeting. कब हुई थी? सबसे पहले 9th दिसंबर, then 11th, then 13th. On 13th December 1946 by Jawaharlal Nehru, objective resolution has been put forward in the Constituent Assembly, which got eventually passed. कब? 1 month, approximately 1 month, 22 January 1947 को जो पास हुई. And that predecessor now has taken form of preamble. So these are all the PYQs. Who passed the objective resolution? JLN. चाहे यूपीएससी के हो, चाहे CDS, यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, CDS, CPF, सब में यही सब फैक्ट्स हैं. Preamble is kind of summary of the Constitution, amended once so far by 42nd Amendment. Preamble neither gives power to the executive nor hinders any power of the legislature. It means neither it is a source of power. भाई एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर नहीं आएगी प्रियम्बल से, या तो एग्जीक्यूटिव को प्रियम्बल कोई पावर नहीं दे रहा है, ना लेजिस्लेटिव हाउसेस पार्लियामेंट को कोई पावर दे रहा है प्रियम्बल. अंडरस्टूड? बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट of preamble in the judicial terms. Although preamble is non-justiciable in nature, every word has equal importance in the prelims exam. जो भी मैं बोल रहा हूँ कोई भी बना के नहीं बोल रहा, ये सारी लाइंस ऐसे ही की ऐसी आपको मिल जाएंगी प्रीलिम्स में. First, the preamble neither gives any power nor prohibit from legislating anything to executive as well as legislature, the two pillars of democracy. But preamble has some important role to play in the judicial proceedings. Although preamble is non-justiciable in nature, it can't be enforced by law of land. But wherever there is ambiguity in any case or any provision of the Constitution, the principles underlying the preamble will be taken into consideration by the judiciary, and then in the light of those provisions the ambiguous provision will be solved. Understood? Now ये बहुत सारी फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए. अब अगली चीज़ है प्रियम्बल की डायसेक्शन करेंगे. ठीक है? सो एज वी ऑल नो प्रियम्बल को लिख लेते हैं थोड़ा सा. इसके आगे आप खुद ही देख लेना. सो दीज आर द एग्जैक्ट वर्डिंग्स. आपको भी रट जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसी को आपको रटना ही रटना बैठ के, बट आपको इवेंचुअली रट जाएंगी जैसे जैसे आप प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे अपनी. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व
to constitute India into a, this is the acronym we have to remember, SOCD, socialist, sovereign, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. क्या है ये, अभी हम देखेंगे इन वर्ड्स को. एंड टू प्रोवाइड ऑल इट्स सिटीजन द जस्टिस. कौन कौन से जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ. 1 2 3 4 एक और है, देख लेंगे थोड़ी देर में. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, assuring dignity of individual. On 26th November 1946 we do hereby adopt, enact and give this constitution to ourselves. So this is the wording. These are the important terminology that we find in our preamble. The first is we the people, defining what is the source of power. The source of power is the people. Second is the date on which the constitution or preamble has been enacted. तो ये डेट है enactment की. Commencement of constitution कब है? 26 January 1950. Then the objectives of constitution: to provide justice, liberty, equality and fraternity. Understood? And this is the kind of idealistic state we want to have in the near future. That is sovereign, socialist, secular, democratic republic. So this is the idea of India. अब एक एक करके देख लेते हैं इनके मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक के. इधर एक फेथ और लिख लेना, FAITH, फेथ. SOVEREIGN शायद से होता है, देख लेना एक बार. Sovereign. Sovereign means India is neither a dependency nor a dominion, but India is a independent country. So this is the exact meaning of being a sovereign country or nation. जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके अकल में घुस जाए ये बात. इंडिया इज़ नीदर अ डोमिनियन नॉर अ डिपेंडेंसी ऑन एनी अदर कंट्री. इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड it is free to decide its internal as well as external matters. It means there is no higher authority than India in its domestic politics. The significance, ये तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया. The significance of this is, as India is a free state, it means India has a discretion to acquire any foreign land or to cede its territory to a foreign player. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस शो करता है. अगर आप अपने घर की बात करो, आपके घर की ये इंडिपेंडेंस शो करता है. ये जो मैंने अभी सिग्निफिकेंस बताई, आप में इतनी पावर है कि आप साइड वाला घर भी कब्जा लें, और आप में इतनी पावर है कि अपना घर का एक रूम और किसी को दे दे. सो दिस शोज योर इंडिपेंडेंस. तो ये है मीनिंग सॉवरेन को. ठीक है, बीइंग सॉवरेन. ऊपर लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा. सॉवरेन, सो CD री, कितनी बार रिपीट हो जाएगा आपको रट ही जाएगा ये. और इसी क्रोनोलॉजी में भी याद रखना. अंडरस्टूड? क्रोनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है. एंड दिस इज द
वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मेंस PYQ, देख लेना आप। सोशलिस्ट, पहला तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसे लाया गया था। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो फिर वो जो प्रियम्बल की लाइन थी मेरे को भी याद आया, आई फॉरगॉट टू राइट इट, दैट फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वो ये थी पूरी लाइन, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो पहले था बस यूनिटी ऑफ नेशन, नाउ आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन प्लस सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड्स। सो व्हाट इज सोशलिज्म? अब ये सोशलिज्म, कम्युनिज्म, अच्छा रहता कि मैं जो मैंने अपने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तो नहीं किया था, काइंड ऑफ, ठीक है, प्रॉमिस ही बोल लीजिए, मैं प्रॉमिस पे रहता और आपको पहले सोशलॉजी सिखा देता, जो भी सोशलॉजी ऑप्शनल के बच्चे हैं। सो उसमें आपको ये टर्म समझने में दिक्कत नहीं आती, व्हाट इज़ सोशलॉजी, व्हाट इज़ सोशलिस्ट कंट्री एंड व्हाट इज़ कम्युनिस्टिक कंट्री। सो काइंड ऑफ एक आइडिया बता देता हूँ मैं क्या होती हैं चीज़ें। देखिए, जहाँ भी ओनरशिप होती है, द वेरी फेमस थिंकर ऑफ सोशलॉजी कार्ल मार्क्स, उसने ये कंसेप्ट दिए थे, काइंड ऑफ कंसेप्ट तो नहीं दिए थे पर काइंड ऑफ प्रोपोगेट की थी। जैसे हमारे जैनिज़्म है, पहले भी 24 तीर्थंकर थे, पर 24 ने पहले की टीचिंग करके अपनी एक ऐड करके फिर उसे प्रोपोगेट किया, तो हम सब महावीर जैन को ही जानते हैं। तो ऐसे ही काइंड ऑफ कार्ल मार्क्स है। चलो ये डीप में मत जाओ, स्टोरी मोड में नहीं जाओ। तो सोशलिस्ट में क्या होता है, जहाँ भी ओनरशिप होती है देयर इज़ अ risk of exploitation. To end this exploitation, we have to end the ownership, the relation between a man and the relation between a man and a product. This ownership has to nix, 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 मतलब खत्म करना है। We have to annihilate this ownership. And when the time comes that this ownership has been annihilated, then we have a socialistic society, then we have a communistic society. पूरा सोशलॉजी में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्टिक कंट्रीज, बट हमको वहाँ तक नहीं जाना, हम यहाँ जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, मतलब इन सोशलिज्म देयर इज़ नो ओनरशिप, अंडरस्टूड। या तो आप ये बोल सकते हैं इसको अदर टर्म्स में, देयर इज़ अ कलेक्टिव ओनरशिप। पूरे अर्थ पे 10 लोग हैं, उन 10 लोगों के पास ओनरशिप है ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। नाउ इन अनदर वर्ल्ड दिस स्टेटमेंट कैन बी मॉडिफाइड इनटू, अगर ये है अर्थ 1, इसमें 10 लोग हैं और किसी के पास भी ओनरशिप नहीं है, तो समझ गए दोनों बातों का, दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग एक ही निकलता है। तो इसको बोलते हैं सोशलिज्म। तो आप बोलेंगे सर ये तो है ही नहीं इंडिया में, सोशलिज्म कंट्री का है, सोशलिस्ट कोई ना है। बिल्कुल, India is not a purely socialist country, but India has adopted क्या, democratic socialism. Now various pre-questions can be asked from here, that in which session, in which Congress session the Congress party has declared that we will govern India on the line of a socialistic nation. तो कौन सा था, 1955 का सेशन था, आवड़ी सेशन, उसमें बोला गया था। तो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर से आप देख लेना। नाउ दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म believes in a mixed economy. It means we will not annihilate all the ownership on the land. It means we can't nationalize all the institution, or we will not nationalize all the institutions as public institutions, but we will only nationalize as per our needs. That's why there are only certain amount of PSUs and other government entities in India. Rest are privatized, and now the government is aggressively pushing for privatization. Understood? क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा स्टैंस चेंज हुआ है, ये तो पहले का एट द टाइम, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर फॉलोइंग दिस थिंग, बट ऐसा नहीं है वी आर एनहाइलेटिंग दिस थिंग, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आपको मतलब समझ में आ गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बिलीव्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी।
democratic socialism don't convey the idea that nationalize all the firms on your land. ठीक है. Neither it will give free control to the market. ना पूरी कैपिटलिस्टिक चाहिए हमें, ना पूरा सोशलिज्म चाहिए. We believe in mixed economy. That is kind of democratic socialism. So this is the meaning of democratic socialism. This socialism is in between, is a middle path of Marxism socialism and Gandhian socialism. So ये लाइन भी आप याद रखना. एक और अच्छा PYQ का क्वेश्चन अभी मेरे को दिमाग में आया, प्रीलिम्स का ही था, एंड सोशलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत आसान लगा होगा ये. वहाँ लिखा हुआ था व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस ऑफ मार्क्स कम्युनिज्म. या तो ऐसा लिखा था, हाँ ये लिखा था व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस ऑफ मार्क्स कम्युनिज्म, और नीचे लिखा था गांधीज रामराज्य. सो यस, ये दोनों इक्वली चीज़ हैं. अंडरस्टूड. सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, आउडी का मैंने आपको पॉइंट यहाँ बता दिया है. सेकुलर अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में. इसमें दो तीन बहुत अच्छी चीज़ है. देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेकुलरिज्म. द फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ऑल्सो नोन एज नेगेटिव. देयर इज अ नेगेटिव कोनोटेशन टू दैट सेकुलरिज्म, एंड येट देयर इज अनदर सेकुलरिज्म कॉल्ड इंडियन सेकुलरिज्म और ईस्ट सेकुलरिज्म और पॉजिटिव सेकुलरिज्म. सी द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज, अगर मैं आपको बोल दूँ यू आर सेकुलर, इट मीन्स यू आर गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी रिलीजन एंड देर इज नो रिलीजन ऑफ योर्स. इट मीन्स यू आर काइंड ऑफ मेंटेनिंग प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी रिलीजन that is thriving in your society. So first of all, you will have to give respect to every religion, and second of all, there is no religion of yours, but you have maintained a principal distance from each and every religion, then you are a secular man. Understood? इनमें से आप एक भी चीज़ प्रोविजन हटा दोगे तो दिक्कत आ जाएगी. अगर आप रेस्पेक्ट किसी रिलीजन की नहीं कर रहे तो भी दिक्कत है वहाँ. अंडरस्टूड? So I was talking about the positive and the negative secularism. In the West, in the negative connotation of secularism, they will not interfere in the secular matters. It means there is a concrete wall between two things, the government and the religion. Neither of the pillars will enter into the territory of another pillar, no matter how aggravated the situation can become. But in Indian way of secularism, there is a quite twist. What kind of twist is this? Indian secularism will give respect to all the religions, and second, it doesn't have its own religion, but it will maintain a principled distance from every religion. There's a difference between maintaining a principled distance or a one-hand distance and preventing one pillar to foray into the territory of other. अगर कोई मेरे प्रिंसिपल डिस्टेंस, यहाँ एक कोई आदमी खड़ा है तो कभी कभी मैं उससे बात भी कर सकता हूँ, कभी कभी मैं उसके पास भी जा सकता हूँ, कभी कभी उसके चपेट भी धर सकता हूँ. बट इफ़ आई प्रिवेंटेड वन पिलर फ्रॉम गोइंग और फोरोइंग इनटू द टेरिटरी ऑफ अनदर, देन इट इज़ अ concrete separate wall between the two. So this concrete wall concept is kind of negative connotation, that is West connotation of secularism. But in India अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि yes, government in many matters. अगर recent की मैं बात करूँ, ट्रिपल तलाक, सबरीमाला इशू, एंड नाउ UCC आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तब भी यहाँ ऐसी दिक्कत हो सकती है. तो आप समझ पा रहे हैं. सो डैट इज़ इंडियन वे ऑफ सेकुलरिज्म. ये हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डाला है. बट द क्वेश्चन अराइजेस, IAS के जो एस्पायरेंट्स होंगे उनका ऐसा दिमाग वर्क करेगा, ठीक है पढ़ लिया हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में डाला गया, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, इंटीग्रेटेड डाला गया, बट ये तीन चीज़ 42nd अमेंडमेंट में ही क्यों डाले गए, इससे पहले क्यों नहीं?
तो इसका मैं रीज़न सेकुलरिज्म का दे लेता हूँ कि सेकुलर 42nd में क्यों डाला, क्या उससे पहले था या नहीं था। देखिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ सेकुलर कंट्री। और स्टार्टिंग डे ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं, इफ़ यू गो बैक इन आवर हिस्ट्री, वी द इंडियंस are the only land where number of myriad of religions has thrived historically. Various sects has been departed from the mainstream Hinduism, Jainism, Sikhism, Buddhism. All these things, all these religions have thrived in India in a peaceful manner since time immemorial. So ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म अभी आया है, ये पहले से था। अशोका की जो पॉलिसीज़ थी क्या थी, रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी। अकबर की जो पॉलिसी थी, रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी। अब वो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि हाँ उन्होंने बहुत सारे बेकार काम भी किए, बट एज ए IAS एस्पायरेंट हम ये सोचेंगे बस। सो सेकुलर पहले से चलता आ रहा था, बस ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। तो एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, दिस इज द पर्टिकुलर अमेंडमेंट दैट हैज़ केम फॉरवर्ड एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी इन इंदिरा गांधी पीरियड, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पीरियड। तो तब उन्होंने ये सारे अमेंडमेंट्स डाल दिए थे। एंड 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ डेट बल्क ऑफ अमेंडमेंट, जो हम बाद में देखेंगे। रीज़न समझ में आ गया। सो देर इज़ वेरी ब्यूटिफुल लाइन दैट यू कैन राइट हेयर इन द मेंस एग्जाम। व्हाट इज इट? इंडिया is neither irreligious country nor anti-religious nor religious, but क्या है, नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर। अगर इतनी सारी बकवास जो मैंने करी वो आपको समझ आ गई सेकुलरिज्म के बारे में, सो दिस लाइन इज़ ईजी टू कंटेम्पलेट। इंडिया एज अ नेशन इज़ नीदर इररिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, नॉर बोल रहा हूँ मैं, नॉन नहीं बोल रहा, नॉन रिलीजियस बट नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर। सो दिस इज द ब्यूटिफुल लाइन दैट यू कैन राइट इन मेंस। Democratic, it means popular sovereignty is resting with the majority. कौन है? People. So that is democracy. और जो अब्राहम लिंकन की जो स्टेटमेंट है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, वो भी आप लिख सकते हो। और मैंने दूसरी अभी क्या बताई, पॉपुलर सॉवरेंटी लाइज विद द मासेस। तो ये है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट इज इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं। दिस इज योर होमवर्क। इनडायरेक्ट आपको पता ही है, दो हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड इज प्रेसिडेंशियल। So these are two types of indirect democracy. In direct we have plebiscite, initiative, recall and referendum. These are the parts of direct democracy. Now ये सब हम पढ़ लेंगे, बट एक्सपीरियंस से समझ आया कि ये सब अप्लाई क्या करना है। नाउ इन आई थिंक मॉक टेस्ट डेट आई हैव गिवन, उसमें ये स्टेटमेंट थी। नाउ इन स्टेटमेंट्स में अच्छे खासे फंस जाते हैं जो भी बिगिनर्स होते हैं। देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट। द फर्स्ट विल बी अ करेक्ट फ्रेज एंड द सेकंड विल बी द इनकरेक्ट फ्रेज। या क्या होगा, पहला इनकरेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज ऑन समथिंग दीज लाइन्स। इन इंडिया इन लोकल इलेक्शंस ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, शायद से यही है, इन लोकल इलेक्शंस ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिकॉल डेमोक्रेसी
कैन बी सीन इन एक्शन। सो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो है वो सही है, एक बार जाके देख लेना कि वो झारखंड और छत्तीसगढ़ ही है क्या। छत्तीसगढ़ तो आई एम कन्फर्म कि छत्तीसगढ़ तो है, झारखंड आप देख लेना एक बार। तो यहाँ क्या सेकंड फ्रेज में खेल दिया, और किस में खेल दिया, एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस स्टेटमेंट बट रिकॉल इज इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी नॉट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनडायरेक्ट याद कर लीजिए कि दो ही हैं, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल, एंड दीज टू थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन फ्यूचर ऑल्सो। सो दीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर, इनडायरेक्ट, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल। तो कहीं भी आपको इन द मॉक टेस्ट इफ यू फाइंड दीज वर्ड्स अटैच टू इनडायरेक्ट दैट विल बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऐसे चीज़ें आप देख लेना। और इनके सबके बारे में एक एक लाइन आप पढ़ लेना, इंटरनेट है आप सबके पास, एक एक लाइन पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। द लास्ट इज Republic. I have told you on 24 Jan 1950 we elected our president, but Republic Day कब, 26 जनवरी, 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को, जब we have our first Republic Day. Why on particular 26 January 1950? Because in this particular date back in 1929 Lahore session, in the year 1930 at Ravi River we hosted a tricolor. So to commemorate that particular incident of Lahore session 1929, but ट्राइकलर कब होस्ट किया था, 1930 में, क्या पता लाहौर सेशन खिंच गया हो दिसंबर के बाद ही, इसीलिए। So to commemorate that particular day we have fixed our Republic Day as 26 January. Understood? Now what that Republic term signifies? It signifies that the elected head of Indian Union is president. It means whoever will be the head of India, that will be an elected head, and second for a particular tenure of the term. So in the case of India, why we are republic? Because our head, our president has been elected, ठीक है, indirectly but has been elected for a particular tenure, that is 5 years. Understood? सो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड रिपब्लिक। अब इसके और भी आप मायने या सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि एवरी पब्लिक ऑफिस इज़ ओपन टू ईच एंड एवरी मासेस। कोई भी पीपल फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन स्टैंड इन द इलेक्शंस। ये बस थ्योरी की चीज़ है, प्रैक्टिकलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी आपको हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जाने के लिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन स्टैंड अप इन द इलेक्शंस of president and can be nominated as a president. So what does this particular republic term signifies? That all the offices are open to general citizens also. So ये हमने कवर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा जस्टिस और इन सब पे। जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें, एवरी वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ जस्टिसेस आर नॉट गिवन और नॉट एंश्राइंड इन अवर प्रीएम्बल। 4 दे दिया आपको, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक, जुडिशियल, बताओ कौन सा है। सो डेमोक्रेटिक और जुडिशियल नहीं है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ही है, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस कहाँ से लिया है? यस, रशियन रिवॉल्यूशन 1918 शायद से, हाँ 1918 ही है, देख लेना आप एक बार, 1917 या 1918 है। उसके नीचे के 3 टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया है? फ्रांस से। तो ये याद रखना, फ्रेटर्निटी एफ, फ्रांस एफ, और ये 3 बंडल में है, ठीक है। जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिकल जस्टिस क्या प्रोवाइड करता है? इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक जस्टिस, ठीक है, शायद से डेमोक्रेटिक जस्टिस ही बोलते हैं, मैं बता दूंगा आपको, डेमोक्रेटिक जस्टिस ही बोलते हैं। तो यहाँ जस्टिस लिख लीजिए। ना ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। सोशल जस्टिस मतलब एवरीवन विच बिलीव्स in the ideas of liberty, equality, so that particular state will be called
टू बी प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, जो भी इन सब में आइडिया रखता है इन सब टर्म्स में. इकोनॉमिकल जस्टिस, यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन basis of the economical criteria of any person. The third is the political justice. It means each and every individual or citizen can take part in election, universal adult suffrage, as well as he can or she can stand or fight in elections. तो ये है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस. उसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप. इसमें कोई समझाने की चीज़ें नहीं है, आपको पता है, बट ये सारे वर्ड्स याद होने चाहिए कि 5 हैं और ये जो भी मैंने अभी गिनाए वो सब है. बी हो गया. उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं, याद आ गया. सोशल एंड इकोनॉमिकल को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं, इन दोनों को मिला के. पॉलिटिकल नहीं है इसमें, याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है. व्हाट इज कॉल्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंसेप्ट. सो सोशल एंड इकोनॉमिकल ओनली. इक्वालिटी में हमेशा भूल जाते हैं, 2 चीज़ की इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एज वेल एज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये 2 हैं, यही आप भूलोगे. नाउ इसके बेसिस पे, इन्फ्रेंसेस पे आपसे कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपको बस वर्डिंग से याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे. इक्वालिटी के बाद क्या है? फ्रेटर्निटी. ये बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं, फ्रेटर्निटी. अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ लिबर्टी, अगर लिबर्टी में तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऑफकोर्सली पॉलिटी पूरा कोर्स करेंगे, तो इसके अगर एग्जांपल्स देना, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेंस एग्जाम. तो अगर आपको एग्जांपल्स देना है तो आप इसमें क्या जस्टिस में लिखोगे, आप डीपीएसपी के कुछ लिख दोगे आप कि डीपीएसपी में ऐसे कुछ जस्टिस के प्रोविजन दिए हुए हैं. लिबर्टी में आप आर्टिकल 19 लिखोगे, ये लिख दोगे. आर्टिकल 25 से 29 लिख दोगे आप, 25 से 28 लिख दोगे आप. रिलीजन के जो आर्टिकल्स हैं, लिबर्टी है वो क्या है? वर्शिप, फेथ, बिलीफ. इक्वालिटी में आप आर्टिकल 40 लिखोगे, आप आर्टिकल 21 लिखोगे, है ना. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस भी है, तो स्टेटस में आप आर्टिकल 18 जैसे टाइटल का है तो टाइटल का लिखोगे. अपॉर्चुनिटी में आप 15 लिख सकते हो, आप 16 लिख सकते हो. अंडरस्टूड. सो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं, एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंस, तो आपको ये याद रखना है. फ्रेटर्निटी में मतलब इन द सोल्जर टर्म इट इज कॉमरेडरी, इन द जनरल टर्म इट इज ब्रदरहुड. सो टू फ्लरिश ब्रदरहुड इन द सिटीजन्स ऑफ कंट्री, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. ठीक है. फ्रेटर्निटी assuring dignity of individual and unity and integrity of nation. So this particular term assuring dignity of individual, this is very important. ये आप भूल जाओगे. क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, भूल जाओगे. हम फ्रेटर्निटी ये सब जो मेजर टर्म्स हम ये सब याद रखते हैं, इसके आगे की टर्म्स याद नहीं रखते. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, assuring dignity of individual, तो ये भी है प्रीएम्बल में. एग्जाम्पल: सिंगल पासपोर्ट, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारे एग्जाम्पल है फ्रेटर्निटी के. ठीक है. सो दिस कम्स टू आवर एंड ऑफ टुडेज क्लास. बट एक चीज़ बची है, रुक जाओ. Everything you study here will be futile if you don't cover your Lakshmikant. The wordings that you will write in the mains exam, that are very important, and वो बस रीडिंग से ही आएगी, और उसके बाद प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट की. Amendability of preamble, this is the last thing in today's class.
So these are the three things that we have to write in mains exam, and also it is important to learn it at the from the viewpoint of prelims also. क्यों? क्योंकि सीधा बोल देंगे in the रे बेरुबारी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट, तो वहाँ सीधा आएगा कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें बोल दिया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई इट कांट बी अमेंडेड. अगेन ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा केस ऑन भारती केस, ना ये जुडिशियल एस्पायरेंट्स का पीछे छोड़ता है ना ये आईएएस का. केशवानंद भारती केस वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंचेस दैट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी. आई थिंक 12 मेंबर बेंच थी, देख लेना एक बार. और एकदम मार्जिन से इसकी जजमेंट आई थी, शायद से 7-6 ऐसे करके कुछ आई थी. इसमें बोला था इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है, इट इज़ पार्ट of our constitution and that's why it can be amended, and subsequent cases we have seen in the 42nd Amendment Act of 1976, 3 साल बाद ही. ठीक है. LIC इंडिया में to reaffirm this judgment is part and it is integral part, that's why it can be updated as well as amended with respect to our constitution, because there are various judgments and various major interpretations by the Supreme Court now and then of Article 19 as well as Article 21, which has given us myriad of inferenced fundamental rights. Article 19 and Article 21 has given us in a theoretical format some of the rights, but these particular rights have been interpreted by our Supreme Court. Supreme Court is custodian of constitution, final interpreter of constitution. Supreme Court has interpreted this theoretical lines in such a way that now we have large number of myriad of inferenced fundamental rights, like right to sleep है हमारे पास, है ना. Then राइट टू इंटरनेट भी आ गया, अब तो राइट टू इंटरनेट दे दिया केरला हाई कोर्ट ने भी. सो ऑल काइंड ऑफ सच थिंग्स. सो दैट्स वाई टू मेक रेजोनेंस विद द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी का इंटरप्रेटेड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, टू रेजोनेट प्रीएम्बल टू दैट पर्टिकुलर इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू अमेंड द प्रीएम्बल ऑल्सो. दैट्स वाई इन LIC इंडिया केस the Supreme Court ruled that preamble is definitely a part of constitution as well as an integral part of the constitution. लास्ट में जाते जाते वापस से 2-3-4 लाइनें सुन लीजिए. preamble ना किसी को पावर देता है ना किसी से पावर लेता है. either it will be legislature or the executive. preamble is not a plan, kind of summary है, ठीक है. preamble is non justiciable in nature. 42nd Amendment Act 3 words included: socialist, secular and integrity. Understood? Preamble has been enacted after the whole of the constitution has been enacted. So these are various points that can come directly in your prelims exam. Make sure you learn the preamble by heart. So तब तक के लिए, if you are liking this content, please like the video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद.